10 square a plus 3 10 to the power 4 a। ठीक है, देखो this can be written as sec square a to the power cube minus 10 square a to the power cube LHS लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। Now what is a cube minus b cube? A cube minus b cube equals a minus b, a square plus b a square plus b square plus a। हालांकि a square minus b square लगाते तो और आसानी से आता। ठीक है, लगा दिया तो ये तो sec a square a cube minus 10 square a cube equal, देखो a minus b means sec square a minus 10 square a, और in this bracket a square means sec to the power 4a plus 10 to the power 4a और plus sec square a multiply 10 square a। I have opened by using the identity a cube minus b। ठीक है, now the next step is देखो equal to sec square is what? बोलो, sec square is 1 plus 10 square a। यहाँ से देखना इस वाले स्टेप को, sec square a equal 1 plus 10 square a, 1 plus 10 square a minus 10 square a, you can see यहाँ से हो सकता है। और नेक्स्ट स्टेप sec to the power 4a plus 10 to the power 4a plus, and it is to prove in the RHS in only in the terms of 10। ठीक है, so you will convert 10 in sec into 10, 10 4a plus sec square a is 1 plus 10 square a multiply 10 square। ठीक है, इसका दूसरा ब्रैकेट लगा दो, एक ब्रैकेट यहाँ से आ जाएगा sec sec to the power 4a plus 10 1 plus 10 square a is cancelled out, so the remaining is 1। sec to the power 4a is sec square a whole square, राइट? ठीक है ना, देखो ये तो टोटल 1 हो गया। sec to the power 4a को क्या लिख सकते हैं? sec square a whole square प्लस 10 to the power 4a और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 square a into 1 10 square a और प्लस 10 to the power 4 ये बन। ठीक है, now sec square a is 1 plus 10 square a and then open by using a plus b whole square। Do this one। Next step is 1 plus 10 square a whole square, ये sec
सेक स्क्वायर ए है और इसका 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म्स प्लस tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan टू द पावर 4a। बाकी ये चीज लिखा हमने। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओके tan स्क्वायर होल स्क्वायर tan टू द पावर 4a प्लस 2ab मीन्स 2 tan स्क्वायर a प्लस tan टू द पावर 4a प्लस tan स्क्वायर a एंड प्लस tan टू द पावर 4a। अब टोटल आपका टर्म 10 में कन्वर्ट हो चुका है 1 प्लस देखो tan टू द पावर 4a tan टू द पावर 4a एंड tan टू द पावर 4a। देयर आर 3 टाइम्स, सो यू मे राइट हियर कि 3 tan टू द पावर 4a and tan square a 2 times and here 1 time, so this is also 3 tan square and I think this was to prove 1 plus 3 tan to the power 4a plus 3 tan square। ठीक है, this is RHS। इसको प्रूव करें तो आप क्या करें, क्यों? क्योंकि अगर कोसेक को 1 अपन साइन ए लिखते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको 1 अपन साइन ए, कोसेक ए इज 1 अपन साइन ए माइनस साइन ए एंड सिमिलरली सेक ए इज 1 अपन कॉस ए, 1 अपन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल, सॉरी ये तो प्रूव करना है, देखो माइनस करेंगे साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर। अब इसके बाद का नेक्स्ट टर्म देखो, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज cos square a, so you may write here cos square a upon sin a multiply 1 minus cos square a is sin square a, sin square a divided by cos a multiply sec square a। See here, you may cancel out, एक स्टेप और लिख देते हैं cos स्क्वायर a अपॉन sin a मल्टीप्लाई sin स्क्वायर a अपॉन cos a एंड sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और sin स्क्वायर a 1 टाइम sin a से कैंसिल जाएगा। This is equal to sin a upon cos a and this is equal to tan a, which is RHS and this was so note down first part। Here is sin cube a plus cos cube a divided by sin a plus cos a plus sin cube a minus
cos cube A divided by sin A minus cos A equal अब a क्यूब प्लस बी, देखो यहां से तो सीधा लगा दो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल आइडेंटिटी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इसके पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको लिख चुके हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कर दो। a साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और नेक्स्ट स्टेप में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये तो केवल अभी इसका है, सिर्फ इसका है, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। इसके आगे सेकेंड स्टेप भी तो लिखना है। प्लस इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। I have applied a cube plus b cube and a cube minus b cube, टू आइडेंटिटीज हमने अप्लाई किया है यहाँ, a cube minus b cube का a cube plus b cube। Now this is cancel out and in this term this is cancel out 2, और यहाँ और भी देखो sin square a plus cos square a is equal to 1, so this is equal to 1 minus sin a cos a, and the next step is यहाँ भी देखो sin square a plus cos square a is 1 plus sin a और cos a। Now this is of the form a plus b a minus b। Where is plus? माइनस साइन ब्रैकेट के पास प्लस, ब्रैकेट नहीं सर, Yeah. सबने ब्रैकेट Here is plus। ठीक है, ठीक। तो 1 माइनस साइन ए cos a प्लस 1 प्लस साइन ए cos a, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। दिस वन इज कैंसिल आउट, 1 and 1 is equal to 2। दिस वाज 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 26 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 1 अपॉन सेक ए प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cos a इक्वल 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस tan a। देखते हैं विद इन 2 मिनट, आपके लिए टाइम केवल 2 मिनट का है, 2 से 3 मिनट लेना पर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। देखते हैं 1 अपॉन sec a प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस tan। Now this is your choice कि you are taking first RHS and then LHS or LHS to RHS, ठीक है। और चॉइस आपके पास है, LHS को RHS लाते हो या RHS को LHS लाते हो, या दोनों प्रूव करते हो।
इज कंप्लीट 15 स्टूडेंट है। डन। में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर का टर्म 1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस, अगर इसकी साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हो सेक ए माइनस टेन ए तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, यानी न्यूमरेटर टर्म में केवल आपको मिलेगा सेक ए माइनस टेन ए। अब सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखना और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो आपको टेन ए जो है इसका मिलेगा केवल माइनस टेन ए, ठीक है। इधर तो माइनस RHS भी आएगा, इधर का माइनस टेन ए आ रहा है तो उधर भी सेम वही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस जब है ना माइनस, इसका प्लस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस टेन प्लस ए को माइनस कर देगा। नहीं समझ में आया? देखो LHS लेते हैं, 1 अपॉन सेक ए माइनस प्लस टेन ए, यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस टेन ए, यही मल्टीप्लाई कर दिया है, और माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई एज इट इज होगा सेक ए माइनस टेन ए, बट डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए प्लस बी, ए माइनस बी है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ये तो ऑलरेडी है। अब यहां से देखोगे सेक ए माइनस टेन ए एंड सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस, बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर 1 और ये बन गया 1 माइनस कॉस। अब आपका जो रिमेनिंग टर्म है, वो जो रिमेनिंग टर्म है वो मिलेगा सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस।
अच्छा, इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आप 1/cos A को sec A लिख दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा sec A माइनस tan A और माइनस sec A यहाँ से कैंसिल हो गया और वैल्यू आ जाएगा इसका माइनस, ये सिंप्लीफाई होकर के माइनस tan A आ रहा है, तो RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। RHS सिंप्लीफाई करते हैं, रब कर दे। यस ना RHS 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस tan A, इसमें मल्टीप्लाई किसमें से करेंगे, sec A प्लस tan A डिवाइडेड बाय sec A प्लस tan A, ये मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां से ही चेंज कर देते हैं, 1/cos A इज sec A, इसको ये चेंज कर दिया, और ये इधर का जो टर्म बनेगा वो sec A प्लस tan A डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बन जाएगा sec A माइनस sec A प्लस tan A, और sec स्क्वायर A को क्या लिखोगे, बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, और जैसे ही लिखोगे कैसे हो जाएगा। अब आपका जो टर्म बचा वो sec A माइनस sec A प्लस tan A, ना ओपन द ब्रैकेट, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec A माइनस sec A माइनस tan A, sec A कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस tan A, and you may see कि LHS इक्वल RHS, ठीक है। गलती पकड़ में आ गया, यहाँ गलत कर रही होगी ब्रैकेट का, अच्छा इसके आगे नहीं बढ़ रही। कह रहा है साइन थीटा पर है, बहुत इजी क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल √2 sin 90 minus theta, and you have to show that what is cot theta equal √2 plus, यह मतलब कुल मिलाकर के cot थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कि cot थीटा की वैल्यू आपको √2 + 1 मिलेगा, ठीक है। और गिवन कंडीशन इज sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल √2 sin थीटा sin 90 माइनस, तो पहले तो एक आइडेंटिटी यहीं पे मिल गया, sin 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, तो पहले इसी को कर देंगे, ठीक है। इधर से देखो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल √2 cos थीटा, ठीक है। अब देखो तरीका बता रहे हैं, उधर देखो प्रूफ के में √2 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो यहाँ पे √2 के साथ cos थीटा है, तो cos थीटा को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 1 बोलो। अगर यहाँ पे cos थीटा ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ये कैसे रिमूव होगा, नहीं कैसे रिमूव होगा, अगर सिर्फ cos
डिवाइड कर देंगे किससे, cos थीटा, तभी रिमूव होगा। अगर कोई वैल्यू है उसको हटाना है तो उसको डिवाइड कर दो उसी से। तो जब cos थीटा भी यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय cos थीटा, जैसे ही आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो यू विल डिवाइड इन द होल टर्म, ठीक है। तो sin थीटा डायरेक्ट लिखे या डिवाइड करके दिखाएं। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल √2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये देखो पूरे में डिवाइड कर दिया। अब बोलो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल, रिया बता रही थी cos थीटा, tan थीटा अब प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 इक्वल √2, मिल गया। अब अगर 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे, ये tan थीटा चल रहा है ना, tan थीटा इक्वल मिल जाएगा √2 माइनस, पर क्वेश्चन तो आपका cot थीटा का पूछ रहा है। tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा। अब देखो या तो tan थीटा के जगह में 1 अपॉन cot थीटा लिखो या दोनों को रिवर्स कर दो, ठीक है तरीके। अगर दोनों को रिवर्स करेंगे ये इसको कितना लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा और इसको कितना लिखेंगे 1 अपॉन √2 माइनस। एक तो ये तरीका रिवर्स करने का मतलब दोनों न्यूमरेटर में है तो दोनों के टर्म जो है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। और दूसरा तरीका tan थीटा को cot थीटा। अब ये 1 अपॉन tan थीटा क्या बनेगा cot थीटा। हाँ तो हमने लिखा तो 1 अपॉन tan थीटा। पहले बात को समझो, हमने आपको दोनों तरीके बताए। हमने कहा या तो आप दोनों को रिवर्स कर दो, मतलब अगर LHS रिवर्स कर रहे हो तो RHS भी रिवर्स कर दो। अगर tan का रिवर्स क्या होगा 1 अपॉन tan, √2 माइनस 1 का रिवर्स 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब 1 अपॉन tan थीटा आपको पता है क्या होता है, cot थीटा होता है। ये बन जाएगा आपका cot थीटा इक्वल 1 अपॉन √2 माइनस 1, ठीक है। पर आंसर ये प्लस में पूछ रहा है और आपका 1 अपॉन √2 माइनस 1 में आ रहा है, तो फिर क्या करोगे, इसको रेशनलाइज, फिर रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल √2 प्लस 1 ही होगा। ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √2 स्क्वायर इज 2 माइनस 1, तो √2 प्लस 1 अपॉन 1 लिखे या ना लिखे बात वही है। तो cot थीटा की वैल्यू √2 प्लस 1 आ गया और यही आपको शो करना, ठीक है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4 and condition is 0 is less or equal than 90 degree, then find theta, ठीक है। आपको ये पूछ रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4 and 0 degree is less or equal than theta is less or equal than 90, then find the value of okay। क्वेश्चन है आपके सामने, देखो पहले इस पे जाना है, इस पे ये कंडीशन देखना 0 डिग्री इज लेस और इक्वल देन थीटा इज लेस और इक्वल देन 90। मतलब जो आप वैल्यू थीटा का फाइंड करोगे
वो वैल्यू आपको 0 से 90 के बीच में ही आनी चाहिए। कह रहा है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे 0 डिग्री आएगा या 0 डिग्री से ग्रेटर आएगा, 90 डिग्री तक आ सकता है, 90 डिग्री के इक्वल आएगा या 90 डिग्री से कम आएगा। ठीक है, अब 120 डिग्री नहीं आ सकता है, 100 नहीं आएगा, 135 नहीं आएगा। जब भी आएगा 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, या 0 भी रहेगा 90। ठीक है, इसीलिए दे रखा है। क्यों दे रखा है उसका मतलब बता दे रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसा मिल गया cos थीटा इक्वल -1/2, मान लो इसको सॉल्व किया, निकल के आ गया। अब -1/2 जो है ये cos 120 की वैल्यू होती है, 120 की वैल्यू -1/2 होता है। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, जो कि इस कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए पहले वो कंडीशन लगा दी है क्वेश्चन कि आपको थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही निकालना है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर चेंज करो। अब बताओ, अगर 90 से एवं चला गया तो आप कैसे उसको लेस देन 90 बनाओगे? अगर 90 से ऊपर चला गया वैल्यू तो आप उसको 90 से 0 से 90 के बीच में करने के लिए क्या करोगे? बोलो। चलो बता, अगर 120 आ गया और उसको 0 से 90 के बीच में करना है, कैसे बनाओगे? 90 प्लस 30, हाँ तब भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका 180 माइनस, देखो 120, देखो 120 तो आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 60। आप अगर साइन इसके साथ आ रहा है तो ये साइन 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है, तो वहां भी ये अप्लाई होगा। आप देखो अगर वो चीज अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है डायरेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देयर आर टू चॉइसेस, आइदर यू में कन्वर्ट साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर। किसी एक को चेंज कर लो। तो आई एम गोइंग टू चेंज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन, क्योंकि साइन थीटा की जनरल वैल्यू लगभग सबको पता होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया इक्वल टू, अब ये मिल जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, बोलो 3 का मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 7 स्क्वायर थीटा, हाउ मच? 4 प्लस 4 ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 इक्वल 4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 और ये प्लस 3 रहेगा। अब इस 3 को उधर ट्रांसपोज कर लो, ये मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 माइनस 3 दैट इज 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1/4। ठीक है, तो इफ यू आर टेकिंग वैल्यू स्क्वायर रूट then sin theta equal how much? Plus minus 1/, ठीक है। अब अगर sin theta equal -1/2 लिख दें तो भाई स्क्वायर रूट लेने का मतलब 1 रहता है। स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ से ले रहे हो तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगे ना, या तो sin थीटा की वैल्यू प्लस 1/2 होगा या sin थीटा की वैल्यू -1/2 होगा। अब बताओ, अगर sin थीटा की वैल्यू आप जो है प्लस 1/2 ले रहे हैं या sin थीटा की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं,
तो इसके लिए साइन थीटा इक्वल साइन कितना 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। थीटा की वैल्यू आपको मिल जाए 30 डिग्री, और यही पूछ रहा है 0 से 90 के बीच। पर अगर -1/2 कहें तब कितना वैल्यू आएगा थीटा का? हालांकि आपको करना नहीं है, पर सो तो करोगे, दिखाओगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इक्वल 30 डिग्री। वैल्यू तो आपके दो मिलेंगे। अब बताओ 1/2 -1/2 कितने डिग्री के लिए होगा? -1/2 कितने डिग्री के लिए होगा? 45 होता है। 30 साइन 30 साइन की निगेटिव वैल्यू किस में जाएगा? या तो थर्ड में, पहले सुन लो, या तो थर्ड में या तो फोर्थ में। या तो आप लिखोगे साइन 180 प्लस 30, नहीं समझे? साइन ऐसे समझो, साइन 180 प्लस 30 अगर लिखा तो इसको आप क्या लिखोगे? माइनस साइन लिखेंगे ना। साइन 180 प्लस में साइन चेंज होता है, रेशियो नहीं चेंज होता है, तो माइनस साइन 30 हो गया, और इसकी वैल्यू -1 मिलेगा। या साइन 360 -30 करोगे तब भी ये मिल जाएगा माइनस साइन 30, तभी मिल जाएगा -1/2। तो -1/2 के लिए दो वैल्यू आ रही है। एक तो 180 प्लस 30 हाउ मच? 210। 200 देखो यहाँ से 180 प्लस 30 210, और 360 माइनस 30 330। तो फॉर दिस वन थीटा इज आइदर 210 और 330। ठीक है। अब आपके पास थीटा के देयर आर टोटल पॉसिबल वैल्यूज 30, 210 और 330 दे रखा है। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज गिवन कंडीशन थीटा इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, पहले दिखाओगे, शो करोगे, उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा इक्वल 30 डिग्री। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।